Okay, students, are you all ready? So we are going to solve example number 3. Under root 4.3 represent geometrically on the real line. Clear? So what are the steps you know? अभी क्लियर किया गया कि क्या क्या स्टेप से हमारा ये जो है रिप्रेजेंट होगा. तो इसको जैसे कि हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 4.3 जियोमेट्रिकली को रिप्रेजेंट करना कहाँ पे, नंबर लाइन या रियल लाइन, ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ठीक है. ड्रा ए लाइन सेगमेंट हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू जितना क्वेश्चन में रहेगा उतना ही स्केल साफ कर लेंगे, 4.3 यूनिट कर लेंगे. ड्रा ए लाइन सेगमेंट 4.3 यूनिट. एनी डाउट्स? ठीक है, तो यहाँ पे आप स्केल से खींचेंगे, ठीक है. नियर अबाउट 4.3, लेकिन ये बोर्ड है तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है. इसलिए हम नियर अबाउट यहाँ पे एक अंदाज़ा ए बी इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर या यूनिट कर लेंगे. क्लियर है? एंड एक्सटेंड एंड EXTEND व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटेंड? बढ़ाना. एंड एक्सटेंड इट टू एनीवन C such that anyone can think BC is equal to 1 unit. यहाँ तक में कोई डाउट है? No sir. Okay. Such that BC is equal to 1 unit. ठीक है. स्टूडेंट उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टेक O as the मिड पॉइंट. टेक O as the मिड पॉइंट किसका? AC का. टेक O as the मिड पॉइंट ऑफ AC. लेकिन डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, मानते हैं आप लोग? यस सर. तो इसका जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. क्या पढ़े आप लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट. क्लियर है? यस सर. तो आइए देखते हैं कैसे. तो विद A as a center, with A as a center and radius more than half of AC, and radius more than half of AC, draw two arcs on both side of AC. Clear हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, ठीक है. with A as a center and radius more than half of AC, draw two arcs on both side of AC. Again with C as a center, and same radius as before, अब इसको हिल डोल नहीं करना, जो इधर से करेंगे A से वही अब C से भी लेंगे. तो with C as a center and same radius as before, draw another arc which cut the previous arc at any 2 points. Yes sir. You may write P and Q etc. ठीक है. तो by joining these 2 points you will get O as the midpoint of AC. O is the midpoint of AC. यहाँ तक में श्योर है सारे स्टूडेंट्स? यस सर. आवाजें एकदम बोल्डली आनी चाहिए. श्योर है? यस सर. Now with O as a center and what should be the radius? Either you can take OA or OC because O is the midpoint of AC. Is it clear students? Yes sir. With O as a center and radius suppose OA, we have to draw what? Semicircle. We have to draw a semicircle. Is it clear? Yes sir. Now what should be the next step, Krishna? You have to draw BD perpendicular to AC. BD perpendicular to AC. So what are the ways? What are the steps? First of all, with B as a center and take any suitable radius. With the B as a center and take any suitable radius. Draw a semicircle. Either you can say draw an arc or draw a semicircle. यहाँ ओवरराइटिंग नहीं होती, एक बार में ले लेना क्योंकि ये बोर्ड है. ओके. Now with this 60 or no sorry. You may direct construct with this point as a center and radius more than half of this, and again with this point as a center and same radius as before. So this is what? This forms 90 degree. Which intersect the semicircle at BD. This is the BD perpendicular on AC, also which intersect the semicircle at BD. Understood everyone? Yes sir. तो अभी आप लोगों ने जैसे पीछे देखा था कि हमारा रूट x को प्रूफ किया गया ना. yes, उसी प्रकार से AB जितना यूनिट होता है उतना ही BD हमारा क्या हो जाता है,
उतना ही 4.3 यूनिट हो जाता है, क्योंकि जैसे ए बी इक्वल टू एक्स लिए थे तो बी डी इक्वल टू रूट एक्स ज्योमेट्रिकली प्रूफ हुआ है अभी जस्ट पीछे, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे ये काम करेंगे तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लें और टेक ओ एज एनीवन, इट मींस मिड पॉइंट, इट मींस मिड पॉइंट ऑफ AC by using perpendicular bisector, okay। तो take O as a midpoint of AC, ठीक है। Now with O as a center, with the O as a center and radius anyone, either OA or OC। Draw a semicircle, draw a semicircle, ठीक है। इतना कर लेंगे ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना था, ड्रॉ एनीवन BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC। क्लियर हो गया यहाँ तक? yes, तो जैसे ही हमने BD परपेंडिकुलर AC किया, ठीक है, तो उसके बाद यही हमारा BD हमको क्या देगा, ठीक है। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC इंटरसेक्ट विच इंटरसेक्ट किसको, सेमी सर्कल को एट D। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देन BD ही हमारा क्या हो गया, चूंकि थ्योरम अभी प्रूफ हुआ है। yes, अब करना क्या है, चूंकि हमको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो विद कौन सा सेंटर लेंगे, विद बी एज ए सेंटर, विद बी एज ए सेंटर, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। बी एज ए सेंटर। साक्षी रेडियस क्या लेंगे, बी को सेंटर यहाँ पे लेंगे ना, तो रेडियस क्या हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट्स, BD विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस BD लेंगे ना, क्योंकि हमको 4.3 वही दिखा रहा है ना थ्योरम से, तो रेडियस BD लेंगे, ठीक है। विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस BD, ड्रॉ एन आर्क। यहाँ पे ये जो आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पे मीट करेगा ना, यस सर। ड्रॉ एन आर्क विच मतलब यहाँ पे जो की, विच मतलब जो की, विच मीट्स किससे, AC प्रोड्यूस, AC यहीं तक है ना, यस सर। AC यहाँ प्रोड्यूस कर देंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप लोग, AC को प्रोड्यूस कर दीजिएगा। ये जैसे AC प्रोड्यूस होगा इस पे ये मिल जाएगा, कौन मिलेगा, आर्क मिलेगा, वो आर्क जो आ रहा है ना, यस सर। तो विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस BD, ड्रॉ एन आर्क विच मीट्स AC at E। AC प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, एट E, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मिट करके क्या हो जाएगा, E, और यही क्या दिखाएगा, एनीवन, अंडर 4.3 यूनिट, UNIT, hence anyone, B is equal to anyone, under BD, either B is equal to BD is equal to what, under 4.3 unit on a real line। क्या सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? yes, कि नहीं? उधर प्रीति आपको क्लियर हुआ? yes, इधर है स्टूडेंट्स आप लोग को? बस इधर गर्ल्स को? yes, चलिए फिर बनाइए। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब हो जाएंगे इसी पे बेस्ड है। yes, तो कल आप लोग बना के आइएगा, कहाँ तक बताइए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 बन जाएगा। yes, और इधर से 5 आउट ऑफ सिलेबस से इसको छोड़ देंगे। और क्या इधर एक्सरसाइज में देखिए कहाँ तक है बताइए। जी नहीं, इसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। 7 तक 9 और 10 आउट ऑफ सिलेबस है। ये है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहाँ है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। यस यानी 1 से लेके 7 8 तक
8 तक होमवर्क है, ठीक है, हो जाएगा ना? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्विक, otherwise physics will be start.